مثال کے طور پر امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان ایک مسئلے کو لے کر رفع یدین کو لے کر اختلاف ہوا اور یہ گفتگو ہوئی. امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ بھئی آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہیں نماز میں رکوع سے پہلے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس لیے کہ میرے پاس حدیث ہے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ تو امام اوزاعی نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی زہری نے، ان کو حدیث بیان کی سالم نے، ان کو حدیث بیان کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع میں سے آنے کے بعد رفع یدین کیا کرتے تھے. تو امام حنیفہ نے کہا میرے پاس بھی حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ مجھ سے حدیث بیان کی حماد بن نبی سلیمان نے، ان سے حدیث بیان کی ابراہیم نخعی نے، ان سے حدیث بیان کی علقمہ نے، ان سے حدیث بیان کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اب امام اوزاعی نے کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں امام اوزاعی کے یہاں جو اپنی اب دو حدیثیں ہو گئی، دونوں طرف صحیح حدیثیں ہیں، تو امام اوزاعی ایک حدیث کو دوسری حدیث پہ ترجیح دے رہے ہیں. کیسے دے رہے ہیں یہ سمجھنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سند شارٹ ہے اور میری سند میں محدثین دیکھو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے امام حنیفہ سے کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی مجھ سے زہری نے، ان سے سالم نے، ان سے ابن عمر نے حدیث بیان کی اور تم کہہ رہے ہو کہ فلاں نے اتنی لمبی سند بیان کر دی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا یہ بھی سننے کا ہے، اور جس کا جو ذوق ہے لوگوں نے اس کو فالو کیا. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، حماد بن نبی سلیمان زہری کے مقابلے میں، زہری زیادہ بڑے حافظ حدیث ہو سکتے ہیں لیکن حماد فقہ میں زہری سے آگے ہیں، اور امام اوزاعی نے اس کو قبول کیا. سالم زیادہ بڑے محدث ہو سکتے ہیں لیکن ابراہیم نخعی سالم سے آگے ہیں فقہ میں. علقمہ کا مقابلہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، ابن عمر رضی اللہ عنہ یقیناً صحابی رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحبت میں ان کو جو فضیلت ہے وہ 10 علقمہ کو نہیں ہے، لیکن علقمہ فقہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کم نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ زیادہ ہیں، کم نہیں ہے. اور پھر آخر میں کہا وہ عبداللہ تو عبداللہ ہیں ہی، عبداللہ کا کیا مقابلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا. تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے اس جواب کو قبول کیا. اب دیکھیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو وجہ ترجیح تھی وہ کچھ اور تھی، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کو روایت کردہ حدیث کو جو راجح قرار دیا، اس کو پریفرنس دی، اس کی وجہ کچھ اور تھی. دونوں اپنے نزدیک قابل اعتبار ہیں. بعد کے لوگوں نے جس اپنے ذوق کے اعتبار سے، کسی نے امام اوزاعی کی لاجک کو لیا، کسی نے امام ابو حنیفہ کی لاجک کو لیا، لیکن یہ اختلاف چلا تو پہلے سے آ رہا تھا. یہ پوری سند آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی اسی مسئلے کی. کیا ہے مکالمہ ہے. اس مکالمہ، یہ مکالمہ کہاں ہوا، کس نے سنا، اس کی بھی ثبوت کی ضرورت ہے نا. اس مکالمے میں، اس پوری کہانی میں، اس پوری اسکرپٹ میں یہ دکھایا گیا کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے ایک سند پیش کی، اس کے جواب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سند پیش کی. پھر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو پیش کردہ سند ہے وہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ سند سے بہتر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، اصل سوال کیا ہے، یہ پورا ڈسکشن ہوا کہاں، اس کو رپورٹ کس نے کیا؟ آپ اس اصل قصے کی سندیں لے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سند پیش کی، انہوں نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ سند پیش کی، یہ کہاں ہے، یہ واقعہ کس نے جو ہے بیان کیا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کہ کس شاگرد نے جو ہے اس روایت، اس واقعے کو بیان کیا؟ تو یہ اصل مسئلہ ہے. اب اس میں دیکھیے پہلا جو مغالطہ ان حضرات کا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ یہ شو کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کتاب میں اسی سند سے روایت موجود ہے. بھئی یہ کتاب کی سند کی روایت کتاب میں سند کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا واقعہ سند کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ واقعہ جس سند کے ساتھ آیا ہے، یعنی اس واقعے کے اندر یہ سند بیان ہوئی ہے. تو جب واقعے کے اندر سند بیان ہوئی ہے تو اس واقعے کے لیے بھی سند درکار ہے نا، کہ اس واقعے کو رپورٹ کون کر رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے. تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بیچ میں مکالمہ ہوتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی ایک شاگرد اس کی رپورٹ نہیں کرتا. ہم پوری دنیا حنفیت سے اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس واقعی کو بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بیچ میں مکالمہ ہوا، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کسی ایک شاگرد سے اس کو روایت کر کے بتائیں. کیا کسی بھائی اتنا بڑا مکالمہ ہوا، کسی نے اس کا ذکر کیا ان کے شاگردوں میں؟ کم سے کم امام محمد رحمہ اللہ کو تو ذکر کرنا چاہیے. وہ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ سے تکرار کیا کرتے تھے اپنے امام کی فضیلت میں، انہوں نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا کہ ایسا کوئی مناظرہ ہوا، ایسا کوئی واقعہ ہوا. تو یہ ایک واقعے کے اندر کی سند ہے اور یہ محتاج ہے، یعنی یہ پورا واقعہ ثبوت کا محتاج ہے. صرف واقعہ سنا دینا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں ایسے کہ بھائی ایک
साहब ने ये दलील पेश की, दूसरे साहब ने बिल्कुल मालिक नाफे अन इब्न उमर सिलसिलतुल ज़हाब की हदीस पेश कर दी। अब मैं कहूँ कि देखो यार, इन्होंने जो पेश किया वो तो सिलसिलतुल ज़हाब यानी सोने की कड़ी है, वो बहुत ही आला सनद से रवायत है, तो क्या इतना कह देना काफी होगा? हम कह भाई ये मुतालबा करें कि ये जो आप कह रहे हैं कि फलान के पास ऐसी सनद है, इतनी आला दर्जे की सनद है, ये सनद उनके पास, इसका प्रूफ क्या है? तो ये जो वाकया हुआ इमाम हनीफा इमाम औज़ाई रहमुल्लाह के बीच में, इसका प्रूफ क्या है, इसका सबूत क्या है? आप वाकये के अंदर एक खास चीज पिकअप कर रहे हैं और कह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो ये सनद है, लेकिन ये वाकया हुआ किधर? इसको कौन, इसका प्रूफ कौन देगा, इसका सबूत कौन देगा? तो मैं आपके सामने दिखाऊं, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको बयान करने वाला कौन है, मैं आपको बताता हूं। यानी इस पूरे वाकये को कौन बयान करने वाला है? इस पूरे वाकये को जो शख्स बयान कर रहा है वो है अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद याकूब अल हारसी। ये वो शख्स है जो 340 हिजरी में इसकी वफात होती, ये बयान करता है इस वाकये को। ये इमाम हनीफा रहमतुल्लाह का शागिर्द नहीं है, ये इस वाकये को बयान करने वाला है। अब जाहिर सी बात है कि ये चूंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का शागिर्द नहीं है, इसलिए इसको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के इस वाकये को बयान करने के लिए अपने और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बीच में प्रूफ देना होगा, चेन देना होगा कि इसने वाकया कहां से सुना। समझ रहे कि नहीं? पॉइंट समझिए आप कि इस वाकये को रिपोर्ट करने वाले इमाम अबू यूसुफ नहीं है इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, इस वाकये को बयान करने वाले इमाम मोहम्मद नहीं है इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, कि डायरेक्ट उनके शागिर्द ने बयान किया और उनकी किताब में मौजूद है और आपने उठा के पेश कर दिया। ना, इस वाकये को, पूरे वाकये को बयान करने वाला कौन है? इसको बयान करने वाला अल हारसी है, जो 340 हिजरी में जिसकी वफात हुई है, और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 150 साल के इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की वफात के 150 साल बाद पैदा हुआ। यानी जो शख्स ये वाकया बयान कर रहा है वो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की वफात के 150 साल बाद पैदा हुआ, इसलिए इसको इमाम हनीफा तक अपनी सनद पेश करनी होगी। तो अब आइए देखते हैं कि इसने जो सनद पेश की है उसकी पोजीशन क्या है। यानी जिस वाकया पूरा जिस सनद से आ रहा है, जो इसको बयान कर रहा है, अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दौर का नहीं है कि उसने बयान कर दिया और आपने ऐसा लग रहा है कि कोई मुकालमा होता, आदमी बैठा हुआ था, सुन रहा था, देख रहा था, उसने बयान करा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा होता तो मसला ही खत्म था। लेकिन ये बयान करने वाला वो शख्स है जो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की वफात के 150 साल के बाद पैदा होता है, वो इसको बयान कर रहा है। अब ये अपनी सनद पेश करता है कि मैंने कहां से सुना इसको, वो सनद देखे आप। तो ये मैं बता रहा था कि पूरा वाकया जिसने बयान किया अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन याकूब अल हारसी है। ये इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के 150 साल के बाद पैदा हुआ। इसने एक किताब लिखी मुस्नद अबू हनीफा। तो मुस्नद अबू हनीफा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की अपनी लिखी हुई किताब नहीं है, इसने किताब लिखी। और ये शख्स जो इस वाकये को बयान कर रहा है, ये झूठा शख्स था। इसका स्टेटस क्या है? ये झूठा शख्स है। ये पूरे वाकये को जो बयान करने वाला कज़्ज़ाब है, झूठा है, खुद बयान करने वाला कज़्ज़ाब है। ये अल हारसी है जो इसको बयान कर रहा है, वो कज़्ज़ाब है। क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये झूठा है? देखिए, इस पर मुहद्दिसीन ने बहुत सारी जरे कर रखी है, लेकिन इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अज़्ज़ोफ़ा मुतरकीन में, कहते हैं जिल्द 2 सफ़ा 141 पे, कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन याकूब, ये अब्दुल्ला बिन मोहम्मद याकूब जो इस पूरे वाक़ये को बयान कर रहा है, काना युत्तहम बिवज़इल हदीस, ये हदीस गढ़ने में मुत्तहम था। इस पर इल्जाम क्या है कि ये हदीस गढ़ता था, नबी पे झूठ बोलता था, नबी के ताल्लुक से जो हदीस गढ़ता हो, ये इस तरह के किस्से बनाना इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। और इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने अल मुग़नी फ़ी ज़ोफ़ा सफ़ा 36 पे लिखा है कि ये युत्तहम बिलवज़, ये वज़े हदीस के साथ जो है ये मुत्तहम है। और इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने एक और जगह लिखा हाज़ा ज़रबुम मिनल वज़, ये मनगढ़ंत चीज है। तो ये उसका, उस शख्स का हाल है जो इस वाक़ये को रिपोर्ट कर रहा है, जो असल हवाला है, असल हवाला है, यानी असल जो बंदा बयान करने वाला है, ये उसकी कंडीशन है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर का हवाला क्या है? ये तो वो शख्स है जो एक किताब लिखा, उसका मैंने बता दिया कि वो खुद झूठा है। अब ये जो सनद पेश कर रहा है आगे, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हदसना मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन ज़ियाद अर्राज़ी। ये सबसे पहले मोहम्मद बिन इब्राहिम अर्राज़ी का हवाला देता है कि हमको इस वाक़ये को, ये तो खुद झूठा शख्स है, लेकिन ये आगे जिसका नाम ले रहा ना कि जिसने हमको बताया ये वाक़या, तो उसका क्या हाल है देखिए। तो मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन ज़ियाद के बारे में ये शख्स कौन था? ये भी कज़्ज़ाब है, झूठा है। इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं क़ालत दारक़ुतनी दज्जालुन यज़उल हदीस लिसानुल मीज़ान में, और तारीख़ बगदाद में इनका कौल मरवी है कि मतरूक है। तो इब्न हजर रहमतुल्लाह ने दारक़ुतनी से नकल किया कि दज्जालुन यज़उल हदीस, ये दज्जाल है। ये कौन? ये इसका पहला वस्ता मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन ज़ियाद अर्राज़ी, ये जो है, ये शख्स के बारे में इब्न हजर ने निकल किया कि अमन दारक़ुतनी ने कहा कि ये दज्जाल है जो हदीस गढ़ता है।
ये फिर आगे समीत सुफियान इब्न उयैना, ये फिर उनके हवाले से ये पूरा वाकया नकल हुआ, ये पूरा आगे का वाकया है। लेकिन इसके शुरू में जो असल शख्स जो इस वाकये को बयान कर रहा है वो शख्स झूठा है। वो अपने ऊपर जिसका नाम पेश कर रहा है वो भी कज़्ज़ाब है, उसके ऊपर जो नाम आ रहा है कज़्ज़ाब। ये शुरू में 3 कज़्ज़ाब है, तो वाकया का साबित हुआ। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है ना भाई, शुरू की सनद आप गोल कर दे और असल किस्सा, किसी आदमी ने एक किस्सा बयान कर दिया, उस किस्से की सनद उठा के आप कहें कि देखो ये बहुत बड़ी सनद मिल गई आपको। नहीं नहीं नहीं, ये पूरा वाकया मनगढ़ंत है। यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास ऐसी कोई सनद नहीं है। ये तो एक किस्सा गो ने ऐसा वाकया बयान कर दिया, ये स्क्रिप्टेड है जो वाकया बयान किया हुआ। इसको जिन लोगों ने बयान किया वो सब झूठे हैं। एक और चीज देख लेते हैं इसमें। देखें, ये तो बात हुई सनद की, हम अंदर कंटेंट को देखते हैं। अंदर है क्या, कितनी अजीबोगरीब बात है। आप देखें अंदर, कभी आपने गौर किया? पूरा वाकया लोग नहीं सुनाएंगे, सनद सुना देंगे, दोनों मुनाजरा वालों ने ये सनद पेश किया, लेकिन उसमें बात क्या कहेगी जरा देखें। एक बहुत ही खतरनाक बात है। बात क्या है, जब कंपेयर किया ना दोनों सनदों को, तो कंपेयर करते हुए एक ताबी को एक सहाबी पे फौकियत दे देगी, एक ताबी को। इसमें आप देखें, यहां पे लिखा हुआ ना कि वो अलकमा लैसा बिदून इब्न उमर फिल फ़िक़्ह, कि अलकमा फ़िक़्ह में इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कम नहीं है। वह इन कानत लिब्न उमर सुहबा, गरचे इब्न उमर सहाबी है। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह से आपकी सनद मजबूत है। यानी इसमें जो क्लेम किया इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने कि हमारी सनद बहुत मजबूत है, वो क्या क्लेम कह रहे हैं कि अलकमा इब्न उमर से ज्यादा फकीह है। ये कौन सा है, ये कौन सा दावा है? इसमें रोने की बात है कि खुशी मनाने की बात है? इसमें रोने की बात है कि अलकमा का तकाबुल हो रहा है इब्न उमर से, कि इब्न उमर से ये ज्यादा जो है फकीह है। तो इतनी रॉन्ग बात इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब है, और उससे आप जो है मुनाजरे का हिस्सा बना के उसको आप शान से बयान कर रहे हैं। और ये पूरी जो कहानी है इस स्क्रिप्ट में, जो पूरी बात है उसे आप नहीं देख रहे कि कैसी कैसी कहानियां लोगों ने बना दी। तो बहरहाल ये जो इस तरह की कहानी बनाने के बाद आगे का फसाकतल औज़ाई, औज़ाई चुप होंगे है, अलकमा को इब्न मसूद से, इब्न उमर से अफजल बताएंगे और चुप रहेंगे ना, ये झूठी कहानी है। तो बहरहाल अब आखिर में एक सच्चा मुनाजरा आपके सामने पेश करके बात खत्म करते हैं। ये तो झूठा है ना, झूठे के मुकाबिल में सच्चा मुनाजरा जो बिल्कुल सही सनद से साबित है। इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह की किताब अस-सुनन अल-कुबरा, बिल्कुल सही सनद से उन्होंने ये रवायत नकल की। उन्होंने आगे जितने अपने उस्ताद और के आगे जितने रजाल का जिक्र किया, सब के सब फ़िक़्ह है। उसमें उसका मैं खुलासा पेश करता हूँ, पूरा मुकम्मल जो है वाक़या नहीं। उसमें खुलासा ये है कि कहते हैं कि वकी बयान करते हैं कि सल्लैतु फ़ी मस्जिदिल कूफ़ा फ़इज़ा अबू हनीफ़ा क़ाइमुन युसल्ली, कि मैंने कूफा की मस्जिद में नमाज पढ़ी तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी नमाज पढ़ रहे थे। वह इब्न मुबारक इला जंबी, और इब्न मुबारक रहमतुल्लाह उनके पीछे युसल्ली नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, और बगल में कौन है? अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह, जो बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस है, साथ में नमाज पढ़ रहे हैं। हुआ क्या देखें आप, सच्चा वाक़या है, इसको कोई ज़ईफ़ साबित नहीं कर सकता। हुआ ये कि फ़क़ाल अबू हनीफा ले अब्दुल्लाह, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा, क्या कहा? इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि या अबा अब्दुर्रहमान रअयतुका तुक्सिरु रफ़अल यदैन अरदत अन ततीर, कहा कि ए अबू अब्दुर्रहमान यानी ए इब्न मुबारक, मैं देख रहा हूं कि आप बार बार रफ़अल यदैन कर रहे हैं, तो क्या उड़ना चाहते थे आप? क्या नमाज में उड़ने का इरादा था? क़ाल अबू लहु अब्दुल्लाह, तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, या अबा हनीफा क़द रअयतुका तरफ़ यदैका हिन इफ्ततहत अस्सलात फअरदत अन ततीर, कहा कि ए इमाम साहब, मैंने आपको देखा कि आप जब नमाज शुरू कर रहे थे तो उस टाइम पे भी आपने भी रफ़अल यदैन किया, तो क्या आप फर्स्ट टाइम उड़ना चाहते थे? उस टाइम जो है आप उड़ने की कोशिश की। फसाकत अबू हनीफा, अबू हनीफा, तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह खामोश हो गए। झूठे किस्से में क्या फसाकतल औज़ाई, झूठी बात। ये जब फसाकत अबू हनीफा, इब्न मुबारक ने अबू हनीफा रहमतुल्लाह को खामोश कर दिया, ये सच्चा वाक़या। इसे बयान करो ना, इस तरह के जो मुकालमे हुए, जो सच्चे वाक़यात हैं, इसे आप बयान करो। ये झूठा वाक़या, झूठा मुनाजरा आप बयान करते हैं जो बेसर पैर का है, इसकी कोई हकीकत नहीं। तो खुलासा ये है, ये जो पूरा वाक़या है जिसके अंदर एक सनद डाल दी गई है डिजाइन करके कि ऐसा ऐसा है, ये पूरे वाक़े को बयान करने वाला हारसी एक कज़्ज़ाब है, उसका जो उस्ताद मोहम्मद बिन राबी वो भी कज़्ज़ाब है, उसका जो उस्ताद सुलेमान वो भी कज़्ज़ाब है। 3 कज़्ज़ाब के जरिए पूरा वाक़या आ रहा है, इसलिए झूठी सनद है, झूठा वाक़या, इसकी कोई हकीकत नहीं। जी तो नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने सुना, और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वादी साहब जो अपने वीडियो में अपने मुनाज़रा ये बयान करने का जो मकसद बताते हैं वो ये कि सलफ़ में, फ़ुक़हा में वो मुनाज़रे मुकालमात होते थे, लेकिन वो एक दूसरे का एहतराम बाकी रखते थे।
تو مفتی بقول مفتی یاسر ندیم الواجدی مناظرہ بیان کرنے کا یہ مقصد تھا، لیکن جو دیگر مقلدین ہیں، وہ حنفی مقلدین، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مناظرہ جو بیان کرتے ہیں، ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے، ان کا مقام، فقہ کا مقام کتنا اونچا اور اعلیٰ ہے۔ حالانکہ جیسا کہ آپ نے سنا شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ سے کہ یہ مناظرہ، یہ واقعہ سرے سے ثابت ہی نہیں، یہ مناظرے کا وجود جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے اس سند سے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ کوئی آپس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ دونوں علماء کے دونوں جو بیانات ہیں ان کو لے کر اس کو جوائنٹ کیا گیا اور ایڈٹ کیا گیا ہے۔ یہ کوئی آرگینک مناظرہ وغیرہ نہیں ہو رہا تھا ہمارے چینل پہ۔ سننے کے لیے جزاکم اللہ خیر۔